ਤੋਂ ਵਸਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्लाह ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦਗਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਫਾਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵਡਾਇਆ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਕੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੇਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਚੁੱਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਦਿਲੇ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਾਪੜ ਲਈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਮਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਖੇਡੋਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं होना, वो गल खराब हो अरे गई। बात आगे बढ़ा ले, बोरिंग हो रही है, रेपिटेशन हो रही है बातों में, आपकी दोनों में रेपिटेशन हो रही है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ नहीं मैंने मैं तो नहीं, तो बात आगे बढ़ा ले ना। म्यूट करने लगा। ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। नहीं नहीं राणा फजल अहमद चिश्ती साहब ही ला दो हुसैन साहब जी हाँ जी लाने हैं। फजल अहमद चिश्ती साहब जी जबरदस्त। चिश्ती साहब जी ये आवाज डबल किसकी आ रही है? राणा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी कश्मीरी सर ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस नहीं वो मैं आजाद राजपूत साहब के ऊपर लें, उनकी बातें बड़ी सुनने वाली होती हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि और टॉपिक पे आगे बढ़ जाते हैं। कौन है आजाद राजपूत साहब? अपने राणा साहब, अच्छा राणा उनकी जैद। बातें तो बड़ी सुनने वाली होती हैं, पर वो एक ही बात जहाँ पर नजीर के पीछे लगे हुए थे, मैंने कहा और भी टॉपिक कर लें। राजपूत भी राणा होते हैं। सलामकुम जी। हाँ राजपूत ही तो राणे होंगे। अली वाला साहब, मैंने आपसे ये वाली बात पूछनी है कि देखो हम सारे जो है ना ठीक ठाक उम्र गुजार चुके हैं और स्कूलों से भी हुए हैं, मस्जिदें खुतबे तमाम बड़े लीडरों की टिकटॉक यूट्यूब सब सुन चुके हैं। आज तक मैंने कभी किसी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम आलम से ये वाली बात नहीं सुनी कि जनाब अली अगर कोई पोप अलैहिस्सलाम कह देगा या शिव जी अलैहिस्सलाम कह देगा हिंदू आदमी, या गुरु नानक जी देव कह देगा, तो हम आगे से जनाब गालियाँ निकाला करेंगे। ये पहली दफ़ा ऐसा है लामेन यहाँ पे टिकटॉक पे मिले हैं जो कहते हैं फिर हम अपने कायद का इजहार कर देंगे। लो जी, ये कायद का इजहार किया, गंदी गालियाँ। अब मुझे बताओ क्या इस्लाम जो है ये गंदी गालियों का मजहब है? और भाई नहीं सुनना तो छोड़ के चले जाओ या एहतजाज कर दो, लेकिन ये गंदी गालियों का मजहब तो नहीं है ना भाई। ये इस्लाम का कौन सा तारुफ पेश कर रहे हैं? और फिर इनको इतनी प्रोटोकॉल दी जाती है जी ये लामे नहीं, इन्होंने कुछ कहना नहीं, वो पहल नहीं करते, उन्होंने तुसी राणा साहब, ते उन्होंने गुस्सा आ जाता है। राणा साहब अंसारी साहब आ गए हैं। अंसारी साहब का सवाल है कि क्या हुसैन साहब साबित नहीं होया अल्लाह तक, वो कहने रोज साबित करो कि पूरा पूरा ले लिए। क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए? ये है सवाल, बताएं राणा साहब। नहीं हुसैन साहब तुसी पीछे चले गए हो। वाटर साहब वो कहते पूरा पूरा लिया ये नहीं, यहाँ तक वो खड़े हैं। मैं वाटर साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। अब सरकारी बंदियों के बारे में बोलेंगे तो आप कितना बोल सकते हैं जी? बस जी एक याद दहानी करवा देते हैं अगर कोई अच्छी करवानी बात है, हुसैनी साहब को। लेकिन वो नहीं सुनेंगे ना। भाई जी। जो अल्लाह को मैं मानता कहता है हूँ ना कि हम तो कभी भी जिम्मेदारी किसी के लेते काबिल के हैं। खिलाफ नहीं बोलता। और अच्छा भाई ये अल्लाह को उनका मानते ही अंसारी नहीं साहब है। आए हैं, उनका सवाल है। राणा साहब जवाब दें। राणा साहब क्या सवाल है अंसारी साहब? क्या सवाल है? अंसारी साहब आप उनकी आवाज नहीं आ रही। अंसारी साहब उनका सवाल है कि पूरा पूरा लिया या आधा, ये बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे नहीं आ रही आवाज। भाई अंसारी साहब बताएं आप के सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है? हाँ ये है, बताएं जी, तो लेकिन- कथा बताएं। ये हुसैनी साहब अंसारी बताएंगे। साहब आपसे ना बात हुई थी, ठीक है। आपको बताया गया था कि जो वफात है वो मौत ही है, ठीक है। और लेकिन आप इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके बाद आपसे एक और बात भी हुई थी, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कुरान मजीद की आयत रखी थी कि या तो अल्लाह ताला का वफा करता है इंसान का मौत के वक्त या जीने के वक्त, ठीक है। दोनों केसेस में जो है अल्लाह ताला उसकी रूह ही कब्ज़ कर रहा है, ठीक है। तो वफा जो हो रहा है किसका हो रहा है? रूह का हो रहा है, रूह कब्ज़ कर रहा है, चाहे वो नींद हो चाहे मौत हो। और आपसे जब बात हो रही थी आपने भी कहा था कि हाँ ठीक है, उसका जो आपने कुछ और अल्फाज किए थे, लेकिन मतलब यही था कि रूह कब्ज़ कर रहा है। तो हम यहाँ तक तो कम से कम पहुँच गए हैं ना कि अल्लाह ताला इंसान की रूह कब्ज़ करता है, तवफ़ा में करता कब्ज़ रूह ही है।
अब ये है कि या तो वो मौत होगी या वो नींद होगी, राइट? नहीं, राइट नहीं है। ये जो इरशाद भाई है ना, इनको देखते ही मुझे रहील साहब याद आ जाते हैं। नहीं, जी। आपने आपसे जब ये बात हुई रखी ये थी मुस्लिम साहब की तरफ से शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, अंसारी साहब का है, अंसारी साहब का शोर है। अंसारी साहब आपका शोर है यार। अंसारी साहब आप फैमिली में बैठे हुए हैं, जरा या दूसरे कमरे में चले जाएं ओके ओके ओके, एक और सेकंड। इनका जवाब दें कि उनको पूरा पूरा लिया ही क्या आता। बेहतर है कि सही। फैमिली को टाइम दे लें। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला तो काफी सालों से चल रहा है, कल तय कर लेंगे। संडे नहीं नहीं, आज को टाइम दे नहीं, लें, आज वो नहीं, ज्यादा आज बेहतर है। नहीं, आज तय कर लेंगे, अगर लेकिन तबीयत आ आज रही है फैमिली को टाइम दे लें, संडे है। तो। नहीं, मैं आप आ गया कमरे में। जी ठीक। जी फरमाइए। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात भी तो आपसे हुई थी ना, जिसमें आपने वो उस आयत के मुताबिक ये तो हम एग्री कर गए थे ना कि कब्ज़ तो वो अल्लाह जो है रूह कर रहा है। अब देखना यह है कि वो इंसान नींद में है या मौत हो गई। नहीं, कब्ज़ रूह तो मैंने नहीं कहा। कब्ज़ रूह होते कि मौत के माने में आ जाता है। आपने वो कब्ज़े कब्ज़े रूह का लफ्ज़ नहीं था कहा, आपने वो कहा था पता नहीं क्या कि क्या कहा था मैंने? आपने कोई फर्क लफ्ज़ कहा था, लेकिन उसके माने यही है, यानी इंसान की जो है वो एक फर्क लफ्ज़ कहा था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। आप बता दें आपके ख्याल में क्या कब्ज़ हुआ उसमें? नहीं, मैं फौत में और मौत में कुछ फ़र्क है अरबी ज़बान में? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, उस आयत के पूछें। मुताबिक फिर क्या कब्ज़ हुआ? फौत के माने तो मौत के नहीं होते। फौत के माने ले लेना है, कब्ज़ कर लेना। देखिए मैं आपके सामने वो आयत रखता हूँ, 1 मिनट जी दोबारा। जी, रखिए। अल्लाह ये पहली दफा सुना है, कह रहे हैं कि मौत का मतलब वो नहीं होता। ये मैं हैरान। चले वो अब उस बात पे, ये बात यही है ना कि अब हम अगर ना मानने वाला हो तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि बात ये है कि एक होता है कि बंदा फौत हो गया है, जी, एक होता है बंदा मर गया है। तो ये फौत बात होने का मतलब जरूरी नहीं होता कि बंदा मर गया है। बस उसका मतलब ये है कि वो उसकी वफात हुई है। जी है। हैं जी? जी है। मौत और फौत बिल्कुल फर्क, सही फरमाया। बड़ा मौत में जमीन और आसमान फौत का में फर्क है। स्पेलिंग लेता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखें मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला ने। ये देखें ना, सूरह जुमर की आयत नंबर 42 खोलें आप। जी खोलिए। मैं कहना जी गल वादे कर देंदे हो। गल से अंसारी साहब ने खेड़ के रख देने वैसे। मैं कहना जी ਤੁਹਾਡੀ और इन्होंने दबा कि रोज साबित करो अंसारी साहब, डेली साबित करना है तुझे। राजा ਸਾਹਿਬ मैं तो चाहे ਤੇ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। राजा साहब को खबर ले आए मेरे थले कह रहे हैं किसी तरह। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਰਾੜ में वो फिर ना उससे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੀਏ ਲੈ ਕੇ नहीं ਆਓ वो नहीं आते ना राणा भाई, वो कहते हैं आप लोग दजल, वो कहते हैं हम दजल करते हैं इधर। नहीं आ सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਾਂਗੇ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਵੋ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। अच्छी बात है। मुरब्बियान का पता क्या मतलब है आपको? यानी साहब वो आप भी दूसरों की ब्रॉड्स पे आया करें। मैंने हाँ जी? देखा कि हैं जी? मैंने कहा आप भी हम कुछ ब्रॉड्स पे जो हैं, जैसे हमारी कुछ ब्रॉड्स हैं और कोई ब्रॉड्स हैं, उन पे आप नजर नहीं आते। नहीं, मैं तो बात ये है कि किसी और जगह जाके, मेरे पास इल्म नहीं है ना, मैं तो जो इल्म वाले हो गए वो जाए तो उनसे। सीकर साहब, उसानी साहब पहले 4 साल पहले अपनी ब्राड 9 तक लगाते थे, उसके बाद मियाँ साहब के पास बैठते थे 2-2 घंटे। हाँ पहले जाते। हाँ अच्छा जी। ये जो मुरब्बियान का एतराज होता है ना ऑलवेज जी, जी। कि मुरब्बियान क्यों नहीं आते, मैं आपको इसका ना एक हाँ नहीं, उसकी आपने वजह
समझा देंगे आप तो मैं आपको मसला ही बताता खत्म हो हूँ, जाना मैं है। आपको सही वजह बताता हूँ, सुन लीजिए। सही वजह अंदर की बात फिर काफी अगर आप थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका दे दें, बेशक बेशक जज़ाकल्लाह। या देखें, जो मुरब्बियान है ना, मुरब्बियान, या वो सिलसिला के खादम है, सिलसिला के एक किस्म के आप कह लें कि उसके अंदर है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ ये तो है बिल्कुल कुछ प्रोटोकॉल सेट हुए हैं उनके लिए, या बिल्कुल उनको उसको अबाइड कर। और वो जो प्रोटोकॉल्स है ना, हाँ हाँ देयर फॉर, ये देखें, वो ऐसे ही नहीं सेट कर दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस दिन एक क्लिप राणा साहब मसरूर साहब से कोई नौजवान था, अभी कोई बता रहे हैं राणा साहब उसके प्रोटोकॉल लानत है इन लोगों पे यार। जी, जी। जैसे मैं बात करता हूँ पीछे से फोन कर ले, ठहरे में एक ओहो मिनट, सेटिंग चेंज करके आया। ये चक्कर हो गया। करो जी। सलाम अलैकुम सैनी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਬਲਗ ਉੱਥੇ 2 ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਿਆ ਸਾਥ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। सोहेब जब मैं बात कर रहा था सैनी साहब, जी जी ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਕਰੋ ਕਾਲ, ਕਰੋ ਕਾਲ, ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ। करो जी काल, करो काल। अगर नहीं होना सोहेब, जब हंसना हो ना तो बता देना, अकेले हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो सैनी साहब मैं ये अर्ज कर रहा था, लेकिन एक बात सुने, मुरब्बियान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, वो जमात का जो सिस्टम है वो समझ सकते हैं इस चीज। जी जी। उसमें बहुत सारी चीज हिकमतें हैं। तो इस चीज को समझें, बस इस थोड़े कहे को बहुता जाने। तो ये एतराज ठीक है, करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, कहाँ क्या करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कर रहे, उनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है हमारे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी, बेशक। और ये आज की जो फैलाई है ना फितना गरी, इसके पीछे ये बनी इसराइल है, ये बंदा, इसने सारा फितना फैलाया है। इसकी वजह से सारी ब्राडो पे गालियां। मैं तो सच वो नीचे आ गया है, बनी इसराइल नीचे आ गया। मैंने कहा ये जो बात आपने समझाई है, गलती कर दी आपने, बहुत बड़ी मुरब्बियान जमात की तारीख में पहले मुरब्बियान नहीं होते थे, पहले इनका नाम कुछ और होता था, पता है आपको? जी बता दीजिए। नहीं आप मोहल्लम होते थे। मेरी जिंदगी में तो मुरब्बियान ही है, उससे पहले मुझे नहीं पता क्या था। मतलब जमात की तारीख कोई बहुत बड़ी, मतलब 500-700 सालों पे तो नहीं, सिर्फ 100-125 साल पे फैली हुई है, कोई इतना ज्यादा मैं मिस कर गया हूँ ये लफ्ज, तो मेरी कोताही है, आप मुझे दुरुस्त कर दें। मतलब मिर्जा साहब के वक्त में मुरब्बी कहते थे या खलीफा अव्वल के वक्त में कहते थे, या नहीं, ये तो खलीफा तो मसीह सानी के दौर के बाद शुरू है ना, खलीफा सानी के दौर के बाद शुरू हुआ है। क्या ये लफ्ज कुरान में आया है? हाँ जी, ये भी सवाल कर लेना आगे से, क्या ये लफ्ज कुरान में आया है? जरूरी नहीं कि कुरान में आया हो या ना आया हो, ना भी आया तो भी कोई अकीदे की बात तो नहीं हम कर रहे, हम लफ्ज की इस्तिलाह की बात कर रहे हैं। अगर अकीदे की बात होगी, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ प्रोटोकॉल्स का मतलब उनके हंसना हो दस नहीं सोहेब, आपको इंग्लिश ही नहीं आती शोभ राजा, आप मेरी बात इसलिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਰਾਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ भाई, ये मतलब नहीं है, सिस्टम चलाना पड़ेगा। मतलब है कि उनके लिए जो सूलत वाबत जमात ने तय की, वो क्या है, कोई थोड़ा बहुत उसका जो बात बहुत सीक्रेट हो वो ना बताएं, लेकिन जो मोटी मोटी है वो उनकी ड्यूटी डिस्क्रिप्शन क्या है। हाँ, उनके टॉप 3 प्रोटोकॉल में बता देखें। उस दिन एक क्लिप वायरल हुआ है अपना, राशिद भाई मैं सेव नहीं कर सका, मसरूर साहब का,
وہ ایک نوجوان ان سے پوچھ رہا تھا، محرم مربی تھے، کہ ہمیں ہمیں جانا چاہیے جو منہ توڑ جواب دینے کے لیے. تو انہوں نے بولا جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے لندن میں، وہ لندن سے شاید تھے، تو ان کے ذریعے جائیں، آپ بات کریں ان مخالفوں سے، ایسے نہیں اکیلے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے گروپ کو جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں. ہاں بالکل ہے، بالکل پراپر اجازت چینل کے ہے. تھرو جائیں. ہاں نہیں جی. نہیں، ایم ٹی میں اے آپ کو پہ بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں ان آپ کو کو اجازت ہے. ان کے ہمارا جو وہ سوشل کمیٹی میڈیا کے پہلے بھی ہے جو نا. مربی ہیں وہ رضی نعمان ہے، وہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ پورا جو ہے وہ پینل بیٹھتا ہے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. تو عرب لوگ ان کے بھی ہیں ان ساتھ میں. جو ہے باقاعدہ. جی ان میں عربی بھی ہیں 2-3. جی، میں نے کہا کیا فارسی میں کہا کہ عربی وہ سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ میں وہ میں نے بھی عربی کہا ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تو نہیں وہ عربی بیٹھتے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ عربی بولنے والے یا پیور عربی. عربی بولنے والا، عربی بولنے والا شہید عربی صاحب، نہیں لوگ نہیں، ہیں. پیور نہیں ہے، عربی بولنے والے ہیں. چلو اچھا. بولنے یہ والا بات عربی ہو بھی رہی ہے. تھی چلو مربیان کی. نال ہی گل تو واپس لے سینی لیں. صاحب وہ آپ مربیان مضمون آ کو رہے ہیں، کھینچ بات کے سن لیں. سینی صاحب وہ مربیان آ رہے ہیں، کمیٹی بنائی ہے حلیفہ صاحب نے. ہاں وہ کمیٹی جو ہے وہ مربیان کو جو ہے وہ پک کرتی ہے اور وہ ان کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ آپ ٹک ٹاک پہ جائیں. وہ پہلی براڈ جو ہے آفیشیل وہ رضی نعمان صاحب ہیں، وہ ہے. ان کے ساتھ 4-5 اور مربی ہیں، اور ابھی جو ہے وہ جرمن سے بھی ایک مربی جو ہے وہ ان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو ابھی جو ہے جرمن سے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو وہ ایسا ایسا آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی براڈ پہ نہیں جائیں گے. جس نے آنا ہے ہماری شرائط پہ آئے، اللہ ادھر آ کے کرے بات کہ کرے، ہم نے کسی کی براڈ پہ نہیں جانا. یہ اچھی بات ہے. yes sure no problem. تھوڑا اگر یہ Yeah, you have بات seen Auckland? Auckland? راجہ صاحب میوٹ لایا جی. Oh, اگر یہ اچھا، ایک بات چیز میں ہے. صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو علی والا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک کنٹری کا سیٹ اپ ہے، یعنی ایک سیٹ اپ ہے. اس کے علاوہ کچھ افریقہ میں بھی کچھ چینلز ہیں جس میں کچھ مربیان ہیں. کچھ ایک ساؤتھ الاسلام الحقیقی چینل ہے، وہ بھی اس میں بھی مربی صاحب آتے ہیں. ایک میکسیکو کا چینل ہے نہیں، جس وہ میں کہتے ہیں مربی نہیں ہوں. وہ میری بات آپ نے کہا تھا کرنا ان سے بات، میں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میں مربی نہیں ہوں. نہیں وہ مربی ہیں، وہ کسی اور سے آپ نے بات کی ہوگی. ادھر 2-3 ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا تھا سوت الحقیقی اسلام جو ہے اسی سے بات ہوئی ہے. وہ گانا میں ہوتے ہیں شاید، وہ بتا رہے تھے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مربی نہیں ہے. سر نہیں یہ وہ ذہن میں رکھ لیں. چلے میں دوبارہ پوچھ لوں گا، لیکن ہاں، مجھے تو دوبارہ یہ. پوچھیے گا ان سے. اور جو میں نے کہا وہ بتا رہے تھے کہ مربیوں کی ڈیوٹی ہے کیا کیا کام کرتے ہیں وہ. تربیت. ہاں جی. نہیں 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 نہیں، وہ حسین صاحب ایک بک ہوندی ہے ہر مہینے تو کچھ لکھا جاتا. وہ کام ہے کلرکنگ دا یا دوجا حساب کتاب وہ مربیان کر رہے ہیں، یہ اس فیلڈ نہیں آئے ہیں. یہ تو اب اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں نا. وہ جو ایک تربیت ہے اور تبلیغ ہے، اور جو تبلیغ کے جہاں پہ اچھے کئی اچھا، چینلز تو ہیں جا کے سیکر بات صاحب کرتے ابھی بتا دیں مجھے کہ کس مربی صاحب نے آپ کی تربیت کی ہے. ایک سیشن ہوا وہ آپ کا تربیت کے لیے. ہیں. یار اس طرح دیکھیں تھوڑا سا، اب میں آپ کو کیا کہوں، ایک تو اس طرح سوال نہیں کرتے ڈائریکٹ اس طرح نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ تربیت کر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھ لیا ہے کہ ایک مربی صاحب کی نشست بتا دیں اپنے ساتھ کہ انہوں نے آپ کی تربیت کے لیے نشست کی ہے. کوئی نہیں کر رہا بھائی، کوئی نہیں کر رہا. تو مجھے پھر بات کرنے دیں پلیز. اچھا، تو وہاں پہ جو نہیں سیکر صاحب آپ یہ کہیں کہ حضور کر رہے ہیں نا، ہر ہفتے کرتے ہیں ہماری ہو ججا صاحب ان باتوں کو پہ کیا آپ اس طرح کی باتیں فضول قسم کی. اچھا، وہ جو ہے ججا صاحب فضول نے یار ایڈے بزرگ بندے نے. مربیان جو ہے نا وہ تربیت اور تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، اور اکثر فورمز پہ اور ڈفرینٹ فورمز پہ جاتے ہیں. انٹر ریلیجیس فورم سے بھی جاتے ہیں اور تبلیغ کے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ یہ تبلیغ کے فورم کہاں ہیں، وہ کس جگہ ہیں؟ ثانی صاحب یہ بندے کو پتہ نہیں ہے، یقین کریں اس کو بس جو ہے نا بات کرنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کنفرم بات کر رہا ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہا. اس کے جو ہے وہ چیئرمین رضی نعمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ 4 بندے ہیں. ٹھیک ہے، 5 بندوں کی جو ہے وہ نیچے ٹیم ہے وہ جو چیک کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں پائلٹ پروگرام کر رہے ہیں. یہ وہ پہلے یوٹیوب پہ بھی پہلے وہ جو آئے ہیں وہ باقاعدہ مربیوں کے ساتھ ایک پینل کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے شرائط یہ رکھی ہیں
کہ ہم جو ہے وہ کسی کی براڑ پہ نہیں جائیں گے, ہم جا کر کسی سے بات نہیں کریں گے, جس نے بھی آنا ہے ادھر آئے, ہماری براڑ پہ آئے, ہمارا جی چاہے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے, جی چاہے گا تو اٹھائیں گے, جی چاہے گا تو نہیں اٹھائیں گے. تو ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی تو دنیا ہے نا, زیادہ جو پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کرنا, جو ڈفرینٹ جو فورمز پہ جانا. اور کوئی فورم جو سوشل میڈیا ہے, اس کے علاوہ کون سا فورم ہے جس میں زیادہ بندے ملتے ہیں اور زیادہ بات بندے کو مل کے, اس میں زیادہ بندے مل جاتے ہیں؟ مثلا میں بتاتا ہوں, جیسے قرآن ہماری ہوتی ہے ایگزیبیشن. ہاں جی, کیا ہوتی ہے؟ قرآن ایگزیبیشن. اچھا, قرآن ایگزیبیشن جو ہوتی ہے کس جگہ ہوتی ہے؟ یہ لائبریریز میں ہوتی ہے. اچھا, لائبریری میں قرآن شریف کی ایگزیبیشن ہوتی ہے. ہاں, ڈفرینٹ قرآن جو ہم نے جماعت احمدیہ نے ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں. ہر لوکل جماعت کراتی ہے. جی, ہاں وہ کرتی ہے, وہ باتیں کرواتی ہیں, یہ بہت پروگرام ہوتے ہیں. نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, لائبریری میں قرآن شریف لے کے جائے جاتے ہیں, تو وہاں پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف دیکھتے ہیں آ کے. ہاں, بہت لوگ آتے ہیں. جو بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم اپنی سائڈ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ جو انٹرنس کے ساتھ ہی جو ایک ہال ہے نا, وہ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ ہال لے کے وہاں پہ قرآن کی ایگزیبیشن کرتے ہیں, اور اکثر جو لوگ انٹر ہوتے ہیں وہ اکثر ادھر سے ہو کے جاتے ہیں. قرآن کو مطلب وہ قرآن کی جلدیں دیکھتے ہیں, کوئی پیلے رنگ کی, کوئی نیلے رنگ کی, کوئی یا قرآن شریف پڑھتے ہیں. ایگزیبیشن کا کیا مطلب ہے؟ کوشچنز ہوتے ہیں, کئی کوشچنز ہوتے ہیں. نہیں, قرآن شریف کو الماری میں کسی چیز میں بند کیا جاتا ہے نا, قرآن شریف کے نسخوں کو ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیبل کے اوپر رکھ کے نمائش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن شریف ہیں, آ کے پڑھیں, بات کریں. اچھا, وہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن شریف. ساتھ ہم نے بینرز بھی لگائے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو آیات ہیں ان کے ترجمے, جو خوبصورت تعلیم ہے قرآن کی, وہ اس کے حساب سے آیات. میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف جا کے اگر ٹیبل پہ رکھ دیں تو ایک وقت میں کتنے لوگ آ کے اس قرآن شریف کو پڑھنا شروع کریں؟ یار حسینی صاحب ایک بات پہ آپ پھنسی گئے ہیں. آپ کو ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ساتھ بینرز ہم نے وہ لگائے ہوتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں وہ جو ٹال سے بینرز ہوتے ہیں. اچھا, بینرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آیات انگلش تو لوگ بینرز قرآن شریف نہیں پڑھتے بلکہ بینرز کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویڈیو لگائی ہوتی ہے. اچھا, ویڈیو بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, ساتھ بینر ہوتے ہیں. بڑا اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے, اور آ کے لوگ سوال کرتے ہیں, ان کو جواب دیے جاتے ہیں. اور جی حسین صاحب پتہ نہیں کتنے دی گل کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے, میں ابھی سنتے جائیں نا. ہمارے بھی ادھر ہوا ہے, ہر جگہ ہوتے ہیں یہ پروگرام, بہت ہوتے ہیں. رانا صاحب منو یہ دسو, جس طرح قرآن پاک جو ایگزیبیشن کرتے ہو, اوتھے جڑے مربی صاحب کھلوتے ہوندے نے, انہاں نوں کنے بندے آ کے سوال کرتے ہیں؟ بہت لوگ آتے ہیں, بہت آتے ہیں, کیونکہ لائبریری کے لیے ہوتا ہے نا انٹرنس کے بعد. کینیڈا میں ایک جگہ ہے اوشوا, روٹ 401 پہ. رانا صاحب آپ کو پتا ہے اس کا؟ جی آشوا کا پتا ہے, جی بالکل پتا ہے. اوشوا میں ایک فلی مارکیٹ ہے, اس فلی مارکیٹ میں 2 سٹال ہیں نمائش ہے قرآن شریف کی احمدیوں کی. میں گیا تھا پیچھے, کچھ عرصہ ہوا وہاں دیکھنے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. ایک لجنہ کا تھا, ایک خدام کا تھا. تو خدام والے سٹال پہ 2-3 آدمی تھے, ایک سموسے کھا رہا تھا, ایک کافی پی رہا تھا, اور ایک چاول کھا رہا تھا. یہ کیا حسین صاحب تبلیغ کون کرتا سی پہ بندے نوں روک روک کے؟ علی والا صاحب اس طرح مذاق کی طرح لیا کرے باتوں کو. ایک تو آپ میں نہیں سکر بھائی, میں اس چیز پہ نہیں ہنسا. حسین صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن علی والا صاحب فوراً سیریس ہو کے نا. میں نے کوئی بات نہ مذاق کی کی ہے, میں نے نہ کوئی بات مذاق کی ہے, اور نہ میں نے کوئی بات پوچھنا تھا نا سوال, نہ میں نے کوئی جھوٹ بات کی ہے. میں بالکل قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہاں پہ. 401 روٹ تو مجھے پتا ہے حسین صاحب, 401 روٹ تو مجھے پتا ہے. حسین صاحب ساریاں گلاں چھڈو, میں نا ہن تے ٹائم ڈھیر ہو گیا ہونا, سو گیا ہونا بندہ.
ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀ अली वाला मैं खुद गवाह ਮੈਂ हूँ, ਜਾਵਾਂਗਾ, हमारी जमात ਮੈਂ में ਤੁਹਾਨੂੰ होते हैं हर ਦੱਸਾਂਗਾ साल। ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मेरा ਤੇ ਕਿੰਨੇ ख्याल ਕੁ है ਸਵਾਲ 100 ਜਵਾਬ से ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 150 ਕਿੰਨੀ लोग ਕੁ आते ਤਬਲੀਗ हैं, ਹੁੰਦੀ। 100 से 150 लोग कम अज कम भी हर एग्जीबिशन में, क्योंकि लाइब्रेरी होती है, बिजी होती है, गोरे लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग रुक जाते हैं, वो पूछते हैं। और जो फ्ली मार्केट की बात कर रहे हैं ना, उसमें आम लोग जाते हैं, मुरब्बियान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लगती हैं, तो मुरब्बियान भी जाते हैं, उसमें ड्यूटी देते हैं मुरब्बियान भी। लेकिन मुरब्बियान की अगर मसरूफियत कहीं और बुक हो, तो जैसे अब 401 उधर भी इंसफिल में भी है, मैं जाता ਨਹੀਂ रहा, ਜਾਂਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਫਰੀਆਂ ਚ, ਕੀ यहाँ ਕਰਦੇ जेन फ्रिंज है में भी यार, है, मैं खुद क्या यार ये बंदा। ਤੂੰ ਮਰਬੀ? और जहाँ मेरे तक समोसे की मैं बात जिस है, कुरान एग्जीबिशन में गया हूँ वहाँ मुरब्बियान भी आते हैं। मतलब जो मुरब्बी हमारे जो हैं, जो जमात के हैं, वो आते हैं, कभी नहीं भी आते अगर वो बिजी कहीं और हैं। इसी तरह एक दफा मैं मतलब ये समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना, ये जो टिकटॉक है, ये जो ब्रॉड है ना, ये सारी दुनिया है। हालांकि इस ब्रॉड पे सारे जो लोग हुसैनी साहब, यहाँ पे समझने समझाने के लिए ਅਲਾਮਾ नहीं ਸਾਹਿਬ बैठा ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। हूं। चलो ठीक है यार, तू ना ही ठीक समझ है, यार, ये बस तुसी ना कर ही दे समझो। यार। ऐसी बस ठीक है। फजूल की बातें। अली वाला आपको बताओ, ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ अच्छा यार, तू ना ही समझ, ना ਇਸ ही ਦੁਨੀਆ समझ ਤੇ ਹੋ अली ਸਕਦਾ वाला, तू ਪੂਰੀ ना ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। वाला भाई मेरी ये हो बात जाता सुने। है। ਤੇ तो भाई मुझे 30 सेकंड दे प्लीज। अली वाला भाई, मैं आपको बताता हूँ, हमारे खुदामुल अहमदिया अंसारुल्लाह में शोबा तबलीग है, ठीक है। जो शोबा तबलीग का काम ये होता है कि इंडिविजुअली वो खुदाम को और अंसार को टारगेट देते हैं, और उसमें 1 to 1 तबलीग होती है। आपने कितने अंसार से, कितने लोगों से राब्ता किया, हमसायों से राब्ता करना, उनसे तलक। देखिए, हमेशा जो अच्छी तबलीग या कम्युनिकेशन उस वक्त होती है जब आप किसी के साथ पर्सनल ताल्लुक पैदा करें। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि दोस्तों के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ पर्सनल ताल्लुक पैदा करो। जब देखिए, सुन लें, जब आप एक बंदे से पर्सनल ताल्लुक पैदा करेंगे, वो आपकी बात सुनने पर रेडी होगा, तब आप पैगाम पहुंचाएंगे उसको। इतनी खेतों की आबियारी हो रही है, जमीनें तैयार हो रही हैं, मैसेज पहुंच रहा है। मुझे आज ही एक बंदा मिला है, आज मैं गया टिम हॉटन, मुझे बंदा मिला है, गोरा था, मैंने उससे बताया हमसीम को, उसने मुझसे लिया, फौरन वहां से खोला। हमारी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। उसने कहता वेबसाइट खोली, कहता मैं घर जाके रिसर्च करूंगा सारी। मैंने 3 मिनट या 4 मिनट बात हुई है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया पूरी दुनिया नहीं है, ठीक है, हमें भी कमियां होंगी, जितना टाइम तबलीग को देना चाहिए वो नहीं दे रहे होंगे लोग, मैं खुद कमजोर हूँगा, लेकिन काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, ये बात तो है। मतलब ये है कि टिकटॉक पे वो काम नहीं हो सकता जो दरवाजा खड़का के पड़ोसियों का उनको कहा जाए कि हम आपको पैगाम देने आए। इसका अपना मिजाज है, इसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अहमियत है। ये दुनिया हुसैनी साहब इस टाइम जितनी यार, जितने बड़े बड़े आप देखे फनकार मशहूर लोग, वो इस टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। अब जितना पैगाम जल्दी यहाँ पहुंच रहा है, कहीं भी और राशिद भाई नहीं पहुंच रहा। अली भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सोशल मीडिया अपनी इफेक्टिवनेस है, देखे मेरी बात सुने। अब जैसे उस गोरे से आज मेरी बात हुई, अब मेरा पर्सनल ताल्लुक पैदा होगा, मैं दोबारा मिलूंगा। अब जो मेरी कन्वर्सेशन उससे स्टार्ट होगी ना, वो डिबेट या दुश्मनी की नहीं होगी, वो दोस्ती की होगी। अब 1 महीना चलती है, 6 महीने चलती है, उसको जो मैं चीजें आगे से आगे बढ़ाता रहूंगा, वो इफेक्टिव होगा। यहाँ लोग आते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। यहाँ कौन है जो समझने के लिए आता है? ये तो अगर मैं आप कोई बात करेंगे ना अली भाई, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपका रद्द करूं, मैं सच्चा हो जाऊं, आपको झूठा कर दूं, खुदा ना खास्ता। तो यहाँ ये मिजाज है ना, यहाँ तो डिबेट का मिजाज है। जो ये इसका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है। मैं ये कह रहा हूं, किसी की अहमियत से इनकार नहीं है, हर चीज का अपना अपना मकसद है। अगर आप कहें कि इसका मकसद नहीं है, बहुत इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो अगर आप कहें कि बाकी जराए आप छोड़ दें, टीवी छोड़ दें, इन पर्सन छोड़ दें, सिंपोजियम छोड़ दें, लाइब्रेरी, कुरान कॉन्फ्रेंस छोड़ दें, नहीं, वो अपनी जगह होने चाहिए।
ये कि चीज मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी जैसे वो कुरान कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये हमें मरबियान खुद कहते हैं, जो डिफरेंट जो अहदेदार होते हैं उनको कहते हैं कि जी कोई इवेंट वगैरह आप करें, कोई कुरान कॉन्फ्रेंस कहीं रखें तो, और उसमें फिर हम अक्सर मरबी साहब को बुलाते हैं तो वो आते हैं। कई दफ़ा अगर कहीं मसरूफ़ हो नहीं भी आ सकते, लेकिन एक है मुझे इवेंट का पता है। एक और जो इवेंट हुआ था वो जैसे ये ना एक मैक्सिकन्स का था, बहुत बड़ा इवेंट, ठीक है। वो मैक्सिकन्स का कोई आज़ादी का था मे बी, और उसमें उन्होंने वो कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे और सब कुछ। तो उधर हमने वहाँ पे किया, वहाँ जाके जो है हमने फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर हमने क्वेश्चन आंसर वाले स्टॉल भी लिया हुआ था हमने वहाँ पे ना। तो वहाँ पे हमारे पास जो मरबी साहब आए वो थे जो हमारे मजलिस के नहीं थे, बल्कि वो जिनको मैक्सिकन लैंग्वेज, जो मैक्सिकन लोगों से जो मैक्सिकन्स को जो तबलीग कर रहे हैं, वो स्पेशली उस इवेंट के लिए आए थे। तो ताकि वो उनसे मैक्सिकन उनसे सवाल कर सके, बातचीत आपस में उनकी हो सके। अफ्रीका में काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अफ्रीका में नहीं, ये मैं लेवल बात पर अमेरिका की कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अफ्रीका, गाना वगैरह में काम हो रहा है उनका बहुत। ऐसा नहीं है कि ये कि जमात उसमें लगी हुई है। हुसैनी साहब, जो आप अभी फरमा रहे थे ओशवा में फ्ली मार्केट है, या उसी से फर्दर आप ईस्ट चले जाए ना तो एक शहर आता है पीटरब्रो। अच्छा जी। वहाँ पे मेरा एक अहमदी दोस्त है, उन्होंने यही कुरान कॉन्फ्रेंस और इसी तरह का एक स्टॉल लगाया हुआ था। अच्छा। तो जो लोकल गोरे और ये वो पहले तो आके उसने अकेले आके मना किया, फिर गया ढेर सारे बंदे लेकर आया और उनको फेंटा छांटा मारा था कि ये हमारी जमीनें हैं, इधर किधर चढ़े हुए और तुम ये क्या मसाया है। जरा कनाडा में मिर्जा साहब की तस्वीरें लगी हुई थी जी, कनाडा कनाडा में पीटरब्रो। तो उनको तो पुलिस अटका नहीं देगी उल्टा। लोकल ये जो गोरे होते हैं ये इतना डरते नहीं है, वो कहते हैं ये मेरी लैंड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। भाई क्या बात मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पे तुम कैसे आ गए? प्राइवेट प्रॉपर्टी, या फॉर श्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका हक है, पब्लिक पे तो नहीं आप कर सकते ये। कि वहां पे उन्होंने मसाया जरा, वो जो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए, वो सब इंटरेस्टेड होते हैं। पहली दफा तो वो जब गोरा रुका था वो ये देखना चाहता था हजरत ईसा दोबारा तशरीफ ले आए, तो वो तो मिलना चाहता था। जब वहाँ मिर्जा साहब की तस्वीर देखी तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया, तो वो फिर और बंदे लेकर आया, तो अच्छा फेंटा जाता। बात है, दलील ना हो तो गुस्से में आना है ना। ये तो मुसलमानों का भी यही हाल है, दूसरे मुसलमान। दोस्त अहमदी है, उसको मैं ले आऊं? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री खबर आई होगी अखबार में कहीं। वो अहमदी दोस्त ने मुझे ये खुद बताया था। अहमदी दोस्त का भी बोरों में भी होती है लोग ऐसे। रोका होगा इसमें कोई नहीं, ट्रूसिकर भाई होगी बात। उन्होंने आके रोका कह रहे हैं कि मैं दोस्त ने खुद बताया है। ये एक तो बढ़ा चढ़ा के बात बयान कर रहे हैं, जैसा ये भाई जिसको मार पड़ी है उसने खुद बताया, मैं क्या करूं उसको। और भाई जितना बताया ना आप यार, कनाडा में तो मार सकता है किसी को, आप सोचो यार, हद है वैसे, हद है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिल्कुल। हेलो बात को इजाजत ही नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करने की। गल सुन लो, जेन चो कट दियो चीज, जेन चो कट दियो कि यूरोप च या अमरीका च या कैनेडा च कोई किसी बंदे ਨੂੰ कोई नहीं मार सकता। ਇੱਥੇ भी मरदे ने, लड़ाइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, झगड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बंदे करते ने, आगे से केस भी होते हैं ना। ठीक है, और केस भी होते हैं ना, आगे से पुलिस एक्शन भी होता है। मैं किसी की गल नहीं करता। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਰਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ पे ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਮ ਕੇਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ कि कोई मारता नहीं है, कोई कुटता नहीं है, सारे काम होते हैं। बात का इससे क्या ताल्लुक है जो तुमने बात बताई अभी? ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। वो सिंपल सी बात है कि उन्होंने ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐ ਜਰਮਨੀ ਆ के अंदर आपने रहना है। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? की दोबारा मैं कहना, तू कहना ना कि जर्मनी नहीं मारते बंदे नु। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਪੇੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਸਾਵੇ। मैं ऐसे कोई करेगा ना, मैं पुत्र उल्टा लटका देगा पुलिस ने ले आके। वो तो
मैं पे कहना तू आ जा, जितना तेरा जोर लगा ਚੱਕ ਲਾ ਆ ਜਾ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जज्जा साहब ये ऐसे लोग हैं कि हर जगह जो बेचारे जिनको कोई इज्जत नहीं मिलती वो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। जज्जा साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੈਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इसको अभी देखते हैं। अब अभी ना जज्जा साहब अपना एड्रेस बता। एक मिनट जज्जा साहब एक मिनट रुकिए। अच्छा जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ये नहीं कह रहे कि वो करवाएंगे, साथी तो सीकर को ये नहीं कह रहे, प्लीज वो आपको नहीं कह रहे कि मैं करवाऊंगा। ये अपना एड्रेस बताए, ये अपना एड्रेस आप गलत समझ रहे हैं। और ये तरीका है कि मैं जो हूँ जमात अहमदिया के लोगों को या मेरा नाम लेके इसको नहीं स्पीकर वो आपको नहीं कह रहे कि आप स्पेसिफिकली वो अपना मारेंगे। एड्रेस बताइए। और फिर जो फंस अपना एड्रेस बताइए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ना ये तरीके जो है तो स्पीकर वो आपको कानून है, आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहे। हाँ कोशिश भी ना करे, ये इंसान जो है वो बच नहीं सकता, गलती तो कर लेगा, हिम्मत भी ना करे, चुप करके बैठा रहे। ये अगले को मार देता है, अगले को मार देता है, लेकिन जब कानून उठता है तो फिर उसके सामने सारे ही ढेर होते हैं। ਉਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तू अपना एड्रेस बता। एक मिनट रुक। तो आजा मेरा ओ गाल सुन मेरा पुत्र एडा रहेगा माचे हां एडा माचे हां ओ गाल सुन मेरा पुत्र एडा माचे हां ऐसे जर्मनी दे विच आजा फ्रैंकफर्ट डिस्टेंट बाग यार नहीं, तू जाना एक मिनट, आप क्यों एक दूसरे के साथ मुकाबले में और तो की बात है ना डिस्टेंट बाग आजा। जब अचानक एक हादसा हो जाए तो दो बंदे आपस में सर रौला ही पै गया। जी जी ऐसे बेहुदा खुदा की कसम कैसे लोग हैं यार, बेहुदा थप्पड़ों लोग पे आ जाते हैं, थप्पड़ों पे। जी इतने बेचारे किस किस्म के खानदान हैं इनके, इतने कमतर किस्म के कि इनको इतनी कमियां हैं कि हर वक्त नफरत ही करते रहते हैं। और वही इनकी पाकिस्तान की आदत नहीं गई ना, एक दूसरे को तफे कुटा। अच्छा ये कि ये जो ना अपना अच्छा कहते हैं ना कि जो बहुत ही गरीब, वो गरीब नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत कम ये बात वैसे ठीक नहीं लोग हैं, उनमें यही बातें चलती हैं। मैं ये तेनू पब्लिक मारूंगा, प्लेस तू मैनू मारेगा, आते सही तू सामने आते कितने ये मतलब हाँ जी वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हुसैन साहब पब्लिक प्लेस में आप नहीं ऐसा लड़ाई नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुसैन साहब, क्या हाल है? बड़े दिन हो गए, आप एक दफा गए थे पंजाब, पता नहीं महीना हो गया कितना, अच्छा वापस आप पलटे ही कोई नहीं। जी यानी मैं 6-7 वीक जो है मैं ट्रैवलिंग पे ही था। अच्छा लंबा तो इसलिए क्या अच्छा। और कश्मीरी भाई बात क्या हो रही है? हो गया, अच्छा तो रहा है। ये बेचारों को इतनी तकलीफ अच्छा है। साहब हुसैनी साहब मैं ये कह रहा हूँ ना कश्मीरी एक मिनट म्यूट लाया यार, कश्मीरी म्यूट ला यार, पब्लिक का दसना वसीम भाई एक मिनट म्यूट लाया जी। वसीम भाई एक मिनट। हाँ जी हुसैनी साहब ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੰਗ ਦੇ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਰਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਚਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ कह रहे हो आपने कहा इसको कहा कि तुम इधर आओ फिर देख। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कह रहे हो ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तुम्हें नहीं बात बड़ा करने मेरे का तू हौसला नहीं है। ओहो मेरे तो बड़ा हौसला तेरे च नहीं। साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ਹੌਸਲਾ ਤੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। मैंने कब कहा है यार तुम्हारा ज़हन ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿਕਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਰੇ ਦੀ। ये नहीं कहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ फ्रैंकफर्ट, तू मेरा एड्रेस पूछना पे। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ। वाला साहब की देखें दिमाग। ਓਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੁਣ।
इतने ਹੁਣ आप ਗੱਲ ਤਾਂ लोगों ਕਰਨ की ਦੇ ਨਾ किस्म के ਤੇਰਾ लोग ਚਾਹ बारी बारी ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ बात ਚਾਹ कर ਪੂਰਾ लें, ਕਰ बारी बारी बात कर लें, पहले नहीं पता बात कर लें। बात क्या करनी है उसका ਰਾਣਾ तरीका ਸਾਹਿਬ देखें ना, वो ਮੈਂ कितना 10 बात ਮਿੰਟ कर रहा है। ਮਿਊਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ अच्छा, ਬੋਲੇ जुल्फिकर भाई उनका मौकफ सुन लें, जो भी नहीं बात नहीं एक मैं राणा साहब वो उस बंदे ने बच्चा बच्चा कह के बात कर रहा है और दूसरा ये ਬੱਚਾ कह ਹੀ ਹੈ रहा ना ਵੱਡਾ है आप जरा तुम हाँ अच्छे से कर लें ना बात। कि क्राइम जो है अच्छा नहीं राणा होता, तो ये किसी ने साहब ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਦਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ तो जब इस तरह की ਹੁਣ बदअखलाकी आपने करोगे तो आख्या बदअखलाकी करोगे तो खानदान ਇਹਨੇ ਆ बदअखलाकी ਕੇ हुआ ਕਿਹਾ ना। ਹੈ ਕਿ ਘਟਿਆ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢਾ ਜਿਹਦਾ ਖੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਢ ਇਹਦੇ ਜਾਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਖੋਲਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਐਡੇ ਘਟਿਆ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ मैंने ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ कहा बैठे है पुछ लो कि ਇਹਦੇ जो ਕੋਲ। हरकतें ਇਹਦਾ करते खानदान हो कितना क्या है, मैंने नहीं उससे पता अपने खानदान की बदअखलाकी शुरू मैं तो करोगे ना खानदान ते गया कि अच्छी तरह तो रिप्रेजेंट नहीं ਤੂੰ करोगे ਮੇਰਾ ना ਪੁੱਤਰ खानदान को। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤੂੰ नहीं, ਕਹਿੰਦਾ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ये ਮਾਰ जो ਸਕਦਾ तू ਕਰ करके ਨਹੀਂ बात ਸਕਦਾ करना ਮੇਰਾ बच्चा ਬੱਚਾ कह के बात ਤੂੰ ਆ करना ਜਾ ਫ੍ਰੈਂਕਫੋਰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ मैं ਡਿਕਸਨ ਬਾਤ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਓਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਡਰੈਸ ਦੇ खानदान को अच्छा शो कर रहे हो ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ क्या ਇਹ बात ਸਾਰੀਆਂ होगी ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ आप ਬੱਚਿਆ लोगों में इतने भी अखलाक नहीं है ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਂਗਲ अपना ਅਗਲਾ बोलने ਜਿਸਾ का ਬਾਹ तरीका ਦੇਣਾ देखो ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਦੇ ਹੋ अपने ਪਹਿਲੇ ਉਂਗਲ बोलने का ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸਾ ਅਗਲਾ ਬਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ अपने बोलने का ਇੱਥੇ तरीका देखो ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਘੂਗੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ भाई ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਹੋਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ तू बहुत बड़ा तू ये बदमाश बच्चा है है। मान लिया भाई तो ਗੱਲ जी से हाँ। कितनी हो रही है कि ਇਹੋ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ लेकिन हो एक मिनट अली वाला भाई इंसाफ की बात है पर्सनल आप पहले हुए हैं इस गुफ्तगू में आप पहले पर्सनल उन पे हुए हैं, उन्होंने किस आपसे गुफ्तगू में बात राणा की। साहब किस ये जो गुफ्तगू भी में बात हुई है ना ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਲਾ बदमाश ਗੱਲ लोग ਸੁਣੋ होते हैं, ये कोई बड़े ਇਹਨੂੰ अच्छे ਕਹੋ खानदान के ਮਿਊਟ लोग ਲਾ होते ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ आपने ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ देखे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ पहले ਕਰ कहा ਲਓ कि ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈ ते वेखांगे ये आपने पर्सनल हुए ना ਕਿ ਕਿਹਾ ਮੈਂ आपने ये कहा कि तू आ तेनू वेखांगे जद ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ इजाजत ਦਿਓ ਅਲੀ ਵਾਲਾ हम माजरत कर ਸ਼ਾਨ ले ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ जनरल अली बात अली वाला होना, भाई एक जर्नल कोई गल कर बदमाश रहे होना। सन अली वाला भाई एक जर्नल गल कर रहे सन जनरल नहीं उन्होंने उन्होंने तो मेरा नाम हाँ, दिया है। उसने वो ਤੁਹਾਡਾ नहीं कर रहे नाम सन दिया है लेकिन तुसी वो इतने पर्सनल हो उसके गए अखलाक नहीं है बेचारे के कि वो यकीन जनरल करो, बात ਉਹ करता है। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਰਮਨੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन आप जर्नल कह देते ना आप तो उसको तड़ी ਉਹ लगा ਤਾਂ रहे ਮੈਂ हैं। ਜਰਨਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ हाँ वो जर्नल गल कर रहे हैं बादशाह ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ प्लीज हाँ जर्नल गल कर रहे सन शान मैं जर्नल गल कर रहा है। भाई बात ये है कि वो मनु ये- कह रहा है तू एड्रेस दे, ये एड्रेस दे, एड्रेस दे। ये इन्हों एड्रेस ये का शौक है, काबिल नहीं एड्रेस है दे कि जनरल बात कर सके यही तो प्रॉब्लम है इसके पाकिस्तान साथ। ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ यार अली वाला भाई कभी जनरल भी भैया पर्सनल भूल होते गए हैं, हैं आपने यकीन कहा करो तुम आओ फिर देखते हैं तफ्फे मारते हैं कि नहीं थप्पड़ मारते हैं उन्होंने कि नहीं, पहले क्या एड्रेस होगा? पूछा था उन्होंने पहले मैंने कुछ बात- सीखर साहब एड्रेस ने बाद में एड्रेस पूछा पूछा है, मैं था सुन रहा हूँ। मैंने कहा इतना पहले ये उन्होंने बदमाश एड्रेस बन रहा है। पूछा था ना वाली बात- मुझे बात कोई तो हुई। इंटरेस्ट नहीं है ऐसा की डिस्कशन करने में लेकिन इतना ये छोड़ दे। बदमाश बन रहा है कि बदमाश छोड़ दे बनना अली कोई अच्छी बात है ठीक है भाई, नहीं छोड़ दे। नहीं वो नहीं वैसे- यार वैसे जर्नल देखें, बातें हो ये रही हैं अक्सर प्लीज मैंने देखा है अब कि खत्म एक- करते हैं चले आप एक- मूव एक ऑन करते हैं मूव ऑन बातचीत में- करते हैं चले नहीं एक शान भाई मुझे एक बात बताएं बदमाश बनना अच्छी बात है ये अच्छे आप अच्छा खानदान शो कर रहे हो अपना और जनरल Please, ਉਹ देखिए, ਬਦਮਾਸ਼ बात- ਬੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਲਕਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਲਕਾਰਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਨਾ किसने ਹੋਵੇ ललकारा ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ आपको? ਲਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ किसने ਮਾਰੀਦਾ ललकारा? समझ आई ना किसने ललकारा ये तुमने पूछा कहा था मुझे ना अपना तेरा एड्रेस address। दो ऐसी बात फजूल में पता एड्रेस नहीं। पूछा है ना तुमने तुमने मैं तेरा एड्रेस तुमने कहा कि एड्रेस दो तुमने कहा कि नहीं कहा अली वाला भाई साहब मुझे इजाजत है मैंने बाद में पूछा था मैं इस बाद में पूछा चले, था। वसीम भाई की बात सुने। वसीम साहब वसीम जी साहब वसीम भाई करें बात असल जो बात अली भाई कर रहे हैं ना
वो मसला ये है कि देखिए वो बिल्कुल ऐसा सच ही है। हम यहाँ पे खुद, अगर मैं भी जमात अहमदिया के स्टैंड पे खड़ा था, लोग आके गालियां भी निकाल देते हैं, सामने पुलिस भी खड़ी होती है। और क्योंकि मेरा तो काम है ये, मुझे इसलिए इन्फॉर्म है कि ऐसा कोई, ये दुनिया ये सब जगह सेम है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। हाँ, कोई वाकई कोई वो तो ठीक है, अगर कोई फर्क पड़ जाए, वो तो ये ठीक कोई है, लेकिन बदमाश जो बदमाश बनते हैं वो कोई बहुत बड़ी, वो कोई अपना खानदान अच्छा शो कर रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है अतुल सिक्का साहब, वो सिर्फ ये बात है नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो गालियां आके दे जाते हैं, जो स्टॉल में खड़े हुए हैं, उनको आके एमडीओ को कोई गालियां आके दे जाते हैं, नहीं, वो तो ज़ाहिर है बड़े अच्छी अच्छे बात अखलाक थी। वाले, वो नहीं, अपने ऐसा नहीं खानदान क्या होता, शो कर रहे हैं लेकिन वो? जर्मन भी दे जाते हैं, हमें आपने खुद खुद दे कहा जाते है, हैं। हाँ जी, मुझे भी दे आपने के खुद जाते हैं। हाँ, तो जो हाँ जी, गालियां दे जाते हैं वो अपना खानदान क्या शो कर रहे हैं वो? नहीं, लेकिन देखिए हमारा ये इंटरेस्ट ही नहीं होता। यही आपको यही पता है बात जब है ना आप कि स्टैंड पे खड़े हैं, आप बदमाश बन के और आप जो है अगले को गालियां दे के तू करके बात करना, बच्चा बच्चा कहना, ये शो करके आप अपना जो फैमिली है उसको क्या आप नहीं, आप खानदान उससे ये को पूछ रहे हैं टॉपिक तेरा नहीं है, एड्रेस क्या एक है। अच्छा प्रेजेंट आप कर रहे देखिए हो। ना, टॉपिक पहले ही नहीं आपने उसका गिरबान सॉरी, पकड़ लिया, मेरा तेरा ये तो एड्रेस टॉपिक नहीं है, मैं मैं कर सिर्फ दूंगा ऐसे बंदे की। नहीं, मेरा आपके ये ख्याल में जो टॉपिक पढ़े नहीं लिखे है। लोग, एजुकेटेड लोग थ्रू होते हैं, सीकर वो क्या जो है वो वसीम भाई एक मिनट ऐसे कोई यार बदमाशों किसी की का एड्रेस ऐसे पूछता है नहीं सोशल मीडिया पे। थ्रू सीकर मेरा पुत्र तेरे खानदान का मुझे पता है, बार बार हाल बात तक सिर्फ ये ना जा। है कि ये जो नहीं अनपढ़ जाहिल से लोग ये होते दबा हैं, ये जो थ्रू इस तरह की सीकर फजूल बदमाशियां और थ्रू गालियां और सीकर गंदी मैं गालियां, तेन अगला गल कोई सुन। हेलो अगर कोई ओ एजुकेटेड गल बंदा हो सुन। वो उनकी ऐसी हेलो तैसी नहीं कर सकता आपके ख्याल में शान भाई? ओ तेरी ऐसी दी तैसी गल सुन, ਉਹ ਨਹੀਂ गल सुन। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਐਮਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ आज आपने स्टार्ट किया, मैं देख रहा नहीं हूँ। आज राणा साहब तुसी भज के बंदे वाल जांदे हो, जेड़ा बंदा Please एड्रेस मंगे, ਜ਼ਰੂरत ਨਹੀਂ ਹੈ। जेड़ा थ्रू बंदा सीकर ने एड्रेस एड्रेस मंगे, पूछा है, तेरे पहले बाद एड्रेस में पूछा। उसके बाद में ओ पहले एड्रेस पूछया उन्हें, जो उन्हें क्या इतना कि तेरी बदमाश जानी हिम्मत है ते एड्रेस जो इतना बदमाश दे बंदा के था, गल उसकी कर। भूख निकल गई ना, हम उसकी भूख टॉपिक निकल गई चेंज ना। नहीं कर सकते। हाँ ना जो तू बड़े अपनी चले तरफ से टॉपिक जो यार, बड़े वसीम अनपढ़- साहब, अनपढ़ एडा तू किस्म के लोग, बदमाश है, एडा तू लोग जो अपने बदमाश है, या खानदान एडा को तू गलार है, बहुत जी, इखलाक मेरा से सवाल बनाना है जी। हाल नहीं बंदा, मुझे वो पता नहीं जिड्डा तू हाल नहीं करेंगे बंदा तो है। उनकी ऐसी की तैसी ओहो नहीं कर मुझे देंगे पता नहीं जो जिड्डा तू अच्छा हाल बंदा नहीं बंदा है। है। जब मैंने मेरे को एड्रेस खुलवाना है पूछा, फिर उसकी भूख मुंह निकल गई ना। नहीं। जी करें, वसीम भाई बात करें। मैं वही वैसे ये कह रहा था कि रियली परल, ठीक है, अब तो मुझे भी ज़रा एक्सपीरियंस हो गया है। जी लेकिन हैरानगी यही ऐसे होती है कि मैं ज़ाहिर है वो ट्रैवलिंग में था 6-7 वीक, सिर्फ ये नहीं है, मैं पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब में था, तो इसलिए ज़ाहिर है कभी कभी सुन तो सकता है, लेकिन मसरूफियत इतनी थी कि हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने कहा तो काफी दिन ही हो गए, आप नजर नहीं आए। जी हाँ। अच्छा अभी लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी ये होती है रियली कि मैं अभी तक समझ नहीं सका, जैसे यहाँ पे भी पहले तो मेरी काफ़ी इंटेलेक्चुअल और अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, और इसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक आई, या लगता है मुझे आनी भी नहीं है कि ये लबो लहजा, ये मकसद ये है कि देखिए प्रोग्रेस होनी चाहिए। मकसद तो ये है कि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मसरूफ लोग हैं, और यहाँ पे अगर 2-4 घंटे, जैसे मैं तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, सुनने के लिए भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये तो फजूल टाइम है भाई। हम तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। अगर समझना यही है कि 2-4 घंटे ऐसी ऐसी जो बातें ही सुनी जाती हैं अक्सर, तो मुझे तो ये है कि भाई क्या फ़र्क पड़ा है, यानी सीखने के लिए आए हैं, तो जितने ये लोग यहाँ पे भी हैं, यानी आपस में ही हमने इतना प्यारा, इतना समय सीखा है कि यानी 8 लोग आपस में मूव ऑन करें ना वसीम भाई, भी नहीं आप भी तो बात move on कर करें। सकते, आप भी- रेस्पेक्ट आप नहीं भी- कर आप भी सकते। लगते लगते वो कहते हैं ना कि बातें वो उसी टॉपिक को जानबूझ के छेड़ रहे हैं, तो आप खुद कौन सा कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मैं काम, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हर रोज ही देखता चले हूँ। आगे चले, कोई बात करें, कोई हाँ नई जी, बात मेरी बात यह है कि क्या नहीं, बात यह है कि इससे क्या प्रोग्रेस है, यानी आप 3-4 साल से यहाँ पे प्रोग्रेस बताया क्या है? आपने किसी को समझाया या कोई आपने कुछ समझा, आपने लिखा हुआ ट्रुथ सीखा, आपने क्या सच्चाई अभी तक सीखी है यहाँ से? क्या मतलब बात यह है कि आगे बढ़े, अगला टॉपिक स्टार्ट हाँ, जब आपने इल्मी बात करनी है, कोई इल्मी बात करें। इन जो चीज़ों पे ना, ये जो आदत है कि खुद अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं लाना और मुखालिफ पार्टी को नसीहत करते रहना जानबूझ के कि जी अपना दिल का गुबार उतारना है, ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है ना। तो यहाँ तो यही है, सुन रहा है यही, अभी राणा साहब यही कहते हो रहा होगा, जस्ट मूव ऑन ना।
चलो कोई ना, कोई बात नहीं सुनाते हैं साइंस साहब। या बताएं जी, हाँ जी। साइड साहब बताएं नई बात। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, या इनके ये कितने प्यार से बोलते हैं, बड़े बिल्कुल प्यार से बोलते हैं। बिल्कुल। मगर किसी को, क्योंकि मैं तो जानता हूं इनको, किसी को पता नहीं है कि ये पाकिस्तान में भी इनके आगे कोई नहीं सी बोलता। हाँ जी। पाकिस्तान में भी इनके आगे कोई नहीं सी बोलता है इनके, क्योंकि ये आप मुंह से तारीफ करेंगे तो अच्छी नहीं लगती। इनके सैलर थे, ठीक है, बहुत ताकतवर फैमिली से ये तलक रखते हैं। उसके बावजूद यही होता है कि जो खाली ढोल होते हैं वो ज्यादा ज्यादा शोर मचाते हैं। यार मुझे अहमद भाई सेंसर से एक बात पूछने दो रह जाएगी। जी जी हुसैनी साहब, जी जी। ये मैं देखता हूँ, ये जो मैं भी बट हूँ, कश्मीरी हूँ, बट बहुत गए हैं जमात अहमदिया में। या आप जितना हर दूसरा बंदा बराड़ पे भी देखेंगे, बट मीर ये सारे, यानी कि ये क्या खास वजह है या उस वक्त पंजाब में ज्यादा उनकी लाहौर या इस तरफ मेजोरिटी है? बात ये मैंने बहुत देखे हैं बट कश्मीरी जमात में। मेरा ख्याल है सियालकोट में चविंडे में फैमिलियां हैं, खानदान बहुत सारे, तो उनमें जो खानदान हुआ तो वो काफी वसी हो गया, तो वो है नुमाइंदगी। बाकी जो कश्मीरी बाद इलाकों में वो बट नहीं कहलवाते, कश्मीरी कहलवाते हैं। जैसे कोई खारियां में जो हैं वो अपने आप को कश्मीरी कहलवाते हैं, मतलब हैं वो बट्टी लेकिन वो कश्मीरी कहलवाते हैं। वैसे कश्मीर साहब ऐसा नहीं है, वही जैसे हुसैनी साहब बता रहे हैं, क्योंकि जैसे चुंडा में दो फैमिली, यानी कुछ जट हैं और कुछ बट हैं, और बट में भी दो फैमिलियां हैं। एक बट हैं जो जैसे हमारे जो हैं, जो जमाती अहमदिया को बड़ों ने एक्सेप्ट कर लिया, और ऐसे ही और ख़ानदान बट है जिन्होंने नहीं किया, और तकरीबन दोनों ही बराबर बराबर हैं, और यानी तादाद के लिहाज से। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर बट्टों की सारी फैमिली ऐसी हैं, 5-5 6-6 भाई, हर के 5-5 6-6 बच्चे, तो वो इस लिहाज से ऐसा लगता है। वैसे ऐसा नहीं है, मुझे जमाती अहमदिया में बहुत ही कम बट मिले हैं, बहुत ज़्यादा कम। इधर तो टिकटॉक पे तो सैनी साहब ये जो मीर हैं, मीर साहब हो गए, ये भी बट ही हैं, कश्मीरी ही हैं। बट भी हम भी जो है कि हम भी ये कौम तुम्हारी पीछे कश्मीरी है, लेकिन हमारे आधा खानदान बट, मीर, ख्वाजा, डार, ये हम सब कहलवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब ये है तो ये, लेकिन काफी तादाद है अपना वसीम भाई, इधर भी ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। वो बट पता है तुहानू पता है, वो रौला बड़ा पाते, लगदे ज्यादा ने है नहीं। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਟ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵੀ ਆਮ, पर एक भी बट तो लगता है कि वो सारे बट ही ने। तो क्योंकि सैनी साहब उस वक्त ये तो तहरीक का ध्यान से उठी है ना, तो उस तरफ तो बट कोई नहीं है, इंडिया वाली तरफ, तो इंडिया वाली तरफ तो बट कश्मीर ये नहीं, जेडे सियालकोट वाले ने उन्हें बहुत सारे लोगों ने मन्निया जी हाँ, सियालकोट बहुत सारी रंगीत फैली। ਅਸਲ 'ਚ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਗਾਲਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हो सकता है, मैं ही समझ गया। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, अच्छा अच्छा अच्छा, ਇੰਜ नहीं है। क्या हुआ, खत्मे ने बूत आंदा वो भी बाट, एक और भी बाट साहब ने, और दूजे भी बाट साहब है, वसीम भी बाट साहब है, मीर सलीमी भी बाट, उन्होंने चाचा वो कड़ा मीर वो जड़े मेरे लतीफ साहब, लतीफ साहब, वो भी तो और भी काफी मैं दुनिया और सुसर ने मीर सलीम साहब। मैं समझे शायद कोई वजह हो सकता है सैनी साहब ने ज्यादा इस चीज का तो नहीं पता है, लेकिन मैं पूछ रही कोई खास वजह सी या रिश्तेदारियां सन, ये की वजह से क्या कुछ टाइम तक इंडिया तो अलग ही है ना सैनी साहब, ते ये पाकिस्तान का अलग है, इंडिया भी तो कोई ऐसा कौम शमा नहीं है नहीं, क्यों नहीं है? कश्मीर साहब एक बात ये कहना कि जो हमारे अहमदी है ना, जो पुराने अहमदी हैं, सियालकोट हो, लाहौर हो, या जो भी जितने बड़े लोग थे ना उस वक्त में, आप उनकी जरा लिस्ट तैयार कर लें, वो सारे अहमदी थे, बड़े लोग जो थे, बिग नेम, जो खानदान बड़े, लाइक जिनकी अप्रोच थी, ये साइंस साहब भी पूछ लें। चलो बात जो भी जैसे भी है, उनकी एक, जैसे हमारे जो एरिया है सब के सब अगर उनको देखें ज़िम्मेदारी के हिसाब से, वो सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो भी अहमदी थे, ठीक है ना। अगर कोई बट किसी एरिए में सबसे ताकतवर था तो वो भी अहमदी था।
تو یہ جو بڑے خاندان یہ احمدی ہونے کے یہ بھی لیکن ان کی ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کی تحقیق نہیں ہے اتنی ان لوگوں کی، یہ ان پڑھ لوگ ہیں زیادہ پنجاب میں کے، بھی یعنی کہنا کہ جو بٹ ہے، جیسے جو ہمارے جیسے میرے پردادا تھے اہل حدیث کا امام مسجد، وہ احمدی ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، بس سارے ایسے ہو گئے. لیکن جو بٹ ہیں خاص کر، وہ بٹ کا مزاج ہے ایسا ہے، ایک تو وہ طاقتور قوم ہے. جیسے ہمارے چونڈے میں قبضہ ہمارا ہے، بے شک 100 لوگ بھی ہوں، لیکن ٹوٹل شہر میں قبضہ یعنی ہماری فیملی کا ہی ہے. بے شک لوگ بہت زیادہ جلسہ ہوتا تھا سیلر کے اوپر پورے سیالکوٹ کا. تو اصل ظاہر ہے وہ کیا ہے، پاور ہوتی ہے جو بٹ کے سارے ایک تو جوان ہیں، پھر سارے 6-7 نہیں. بچے ہیں. وسیم صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ تحقیق کر کے گئے ہیں اس طرف نہیں، یا کوئی نہیں ہمیں میں یہی کہہ رہا ہوں ان کا کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا تحقیق میں کیسے، بس یہی پیدا کہتا ہوں ہوئے تو ہو تحقیق گئے. کی طرف نہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو تحقیق کر کے جائیں دوسری طرف، بٹ کتابیں پڑھی ہوں، نہ سیر ایسا نہیں نہیں ہے. کھپاندے، ان پڑھ ہی لوگ تھے نا یہ لوگ زیادہ. تھوڑا سا بٹ نہ سیر نہیں کھپاندے، وہ اندر ساڈا میں جسم یہ بہت کہتا زیادہ ان بس. پڑھ لوگ تھے زیادہ، تو یہ کس طرح مطلب کشمیری میں ایسا نہیں ہے. کشمیری بھائی جو بڑے لوگ تھے ایک نا چیز ذہن وہ میں بہت رکھیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے. جو بڑے جنہوں نے احمدیت قبول کی ہے نا وہ ویری ویری ہائیلی کوالیفائڈ تھے. مگر ان کے ساتھ فیملیاں جیسے آئی ہیں، ظاہری بات ہے وہ جیسے پاکستان کا ایک کسٹم ہے کہ گھر میں ایک ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سارے یہ سسٹم ہے نا بھائی. افریقہ میں جائیں وہ ایک گاؤں کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ پورے لوگ بس اس کو follow کرتے ہیں. سارے جیسے ہمارے 2 لوگوں نے، بس پھر وہ سارے اس کو فالو وسیم کرتے بھائی، ہیں. آپ کے دادا یا پردادا جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی، ان کی کوالیفیکیشن کتنی تھی؟ مجھے نہیں پتا، وہ امام مسجد تھے اہل حدیث مسجد کے چونڈا کے. ٹھیک ہے. وہ کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وغیرہ تو نہیں تھے؟ نہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھی وہ جو دادا پردادا نے سب نے بیعت کی ہوئی ہے مسیح موت کی، پھر بس اتنا ہی سمجھ کے، اور کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. وسیم بھائی ابھی دیکھیں کہ ابھی بات ہوئی ہے نا، اب بتاتا ہوں 57 کنٹری ہے مسلم کنٹری، ٹھیک ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ یو این او کا جو ہے وہ ممبرشپ کے کسی کے پاس 57 کنٹری یو این او کا پریزیڈنٹ رہا ہے تو وہ بھی ایک احمدی تھا. نوبل پرائز کسی کو سائنس میں ملا، وہ بھی 57 کنٹری میں وہ صرف ایک احمدی تھا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نہیں فرق تو نہیں پڑتا، فرق تو نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے فلسطین کا کیس جو لڑا ہے، ہائیڈلبرگ میں 14 نوبل پرائز تھا. جس نے پروسیکیوٹ کیا ہے، ہم وہ نہیں بات کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جوئش اپنا وسیم بھائی، ہائیڈلبرگ میں 56 جو ہے وہ نوبل پرائز ہے. ہاں جی، نے ملا پتا میرے ادارے کو ڈیکا ایف سیٹ اس کو شہر کو جو ہے وہ کہتے جو ہے فلاسفروں کا شہر ہے. ہاں جی، اب میرے ساتھ کے اب وہ جو ہے وہ ہائیڈلبرگ کے جو ہے وہ جہاں پہ اقبال افر ہے یا دوسرا وہ البرٹ ہے، وہ سارے ہیں، وہ ان کو وہ جو ہے وہ پھر وہ کیا مان لیں. پھر ابھی جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں لے کے گیا، اس میں وہی سائنٹسٹ تھے. 57 کنٹریز میں ایک بندہ بھی وہ ایسا نہیں ہو سکا جس نے سائنس میں نوبل پرائز لیا ہو. تو کیا ہو گیا اس سے؟ ایون پیلسٹائن کا جو مسئلہ تھا نا، ابھی پیلسٹائن کا مسئلہ، وہ بھی جو جس نے پروسیکیوٹ کیا ہے جوئش پرائم منسٹر کو، جو وہ بھی احمدی تھا. تو اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے اس نے کیا کہ وہ احمدی، کہ اس وجہ سے کیا کہ وہ قابل وکیل ہے، اس وجہ سے نہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کو لائر نہیں مل سکا. اور آپ کو کس نے یہ کہا لاء نہیں مل سکا؟ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے اس کے صرف خلاف نہیں کیا، اس نے اسرائیل کے خلاف نہیں کیا، صرف احمدی جو ہے نا روس لینڈ کے خلاف بھی کیا. اس چیز میں بہت آگے ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. ایون آپ کا جو کشمیر کا مسئلہ ہے، جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ قرارداد جو ہے وہ پاکستان کے حق میں منظور ہوئی کہ جی حق خود ارادی ملنی چاہیے کشمیریوں کو. اچھا، اپنا وسیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی نہیں گزرا. یہ ٹاپک وہ بھی سر رسول اللہ خان نے یونائیٹڈ نیشنز میں وہ ایکسیپٹ کرائی تھی. وسیم بھائی میرا جو ہے وہ احمدیوں نے کیا تھا، سب کچھ احمدیوں نے کیا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ان کی ہے، میں نے ابھی یہ گوگل پہ چیک کیا ہے، یہ دیکھ لیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کو جو ہے وہ نوبل انعام نہیں ملا. تو ڈاکٹر احمد زویل ہے، کیمسٹری میں ملا ان کو. ڈاکٹر عزیز انچار ہے، ان کو کیمسٹری میں ملا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی جان یہ آپ یہ دیکھ لیں، اور بھی بندے ہیں، صرف یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا، اور بھی بندے ہیں ہمارے پاس. جو ابھی 14 جو ہے ہمارے پاس جو لاسٹ ہے وہ بھی ہماری سٹی سے ہے.
बाकी जो दूसरे लोगों को जो मिले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हाँ नहीं वो उनको वैसे वो नकली दे दिया, उनका असली नहीं था। ये बात सही फिजिक्स से तो हाइडलबर्ग को मिला है, फिजिक्स के नोबेल प्राइज हाइडलबर्ग से हैं, है। जी जी फिजिक्स के नोबेल प्राइज हाइडलबर्ग से है, अभी जो लास्ट वसीम नोबेल भाई प्राइज मिला वो ये हाइडलबर्ग बात, से है। वसीम भाई ये बात नहीं है, बात ये कर रहे थे हम कि जो मानने वाले लोग थे वो हाईली एजुकेटेड लोग थे, उनके पीछे फैमिलियां फिर ये बात कर रहे थे। वसीम भाई वो हाइडलबर्ग के जो जितने हैं वो सारे एमडी हो चुके हैं, वो जितने 56 फिलासफर वगैरह हाइडलबर्ग में वो सारे 100 हैं। साल में एक एमडी हुआ होगा शायद, 100 साल नहीं में। वसीम भाई तो सारे एमडी हैं, अच्छा आपको पता ही नहीं, ठीक जर्मनी 99% एमडी है। मैं सब कुछ जानता हूँ, और मसला ये है, देखिए 99% देखे वसीम भाई, देखे डॉक्टर मैं साहब, बताता हूँ कैसे एमडी हैं। हाँ देखे जी जरा मेरे तो साहब भाई, अगर मुझे क्या प्लीज मैं जाते। नहीं, मैं देखिए बताता डॉक्टर हूँ, अब्दुल इस्लाम, पूरे देखिए यूरोप, देखे पूरा यूरोप एमडी है, पूरा जापान एमडी है, सारी आपको पता ही दुनिया नहीं है। एमडी है जी, सारी दुनिया एमडी है। ओके पता ठीक हो क्या गया। कायदे बारे वाले हैं ना उनके पास, हाँ जी, झूठ मसला नहीं ये है बोलना, दवाई में मिलावट नहीं करनी, या ठीक है, और मरतद की सजा जो है वो कत्ल नहीं है, ये सारे कायदे एमडी वाले हैं, सच बोलना है, ये कायदे सारी दुनिया जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वो सारे एमडी हैं। असल ये है, देखिए जो डॉक्टर अब्दुल इस्लाम साहब है ना, मैं दुनिया के काबिल साइंटिस्ट, उनकी रिस्पेक्ट इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि वो दुनिया के एक अच्छे साइंटिस्ट थे और उनकी जो साइंसी इल्मी जो उनके पास पावर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ जैसे ही सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे तो वो एक दुनिया के बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर थे, इस वजह से। और असली ये है कि वो मुझे हुसैनी साहब ने बताया एक दफ़ा कि ठीक है लोग अपने अपने ग्रुप का फिर नाम लेते हैं, तो वो भी मुझे समझ आ गया कि ठीक है, ये भी ठीक है भाई, सब लेते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई वसीम भाई दलील देखे नहीं ना है। कि जैसे आपने बात की है ना, अब देखे कि क्या उस कंट्री ने उस बंदे की जो आप बात कर रहे हैं कि उस साइंस की वजह से इज्जत होनी, इज्जत की नहीं देखिए वो तो देखिए बात ये होती नहीं, है, अब जब ये वो बात होगी तो फिर ये भी होगी ना, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे तो क्यों नहीं है। क्यों क्यों उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। नहीं नहीं देखिए ऐसे नहीं, जो अच्छे वहाँ पे भी जो लोग हैं, मैं इतने हजारों लोगों को जानता हूँ, जब मैं डॉक्टर अब्दुल इस्लाम की पोस्ट लगाता हूँ तो एमडी लाइक नहीं करते, मुसलमान लाइक करते हैं मेरी पोस्ट को, और मोस्टली यहाँ के जर्मनी के मुसलमान। यानी मुझे है कि ये ऐसा फैलाया गया है, ऐसा ही हमें भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि भाई ऐसी नहीं है सच। नहीं अभी वसीम सलीमा, भाई जो अभी गलत देखिए बात है, अभी देखिए पाकिस्तान प्राइम में था, मिनिस्टर के नहीं नवाज अभी शरीफ मैं ने सर मेरी बात फिजिक्स सुन लो, का उस फिजिक्स के डिपार्टमेंट का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे रखा, मुझे ठीक सर है। सब कुछ पता है, मैं अभी उनके पास था। है ना, पाकिस्तान ने वो भी जनरल वो एमडी था, अभी मैं सलीमा जनरल हाशमी के साथ था अख्तर हुसैन। अभी जितना मैं कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के पास है ना, वो एमडी जनरल अख्तर हुसैन। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अब्दुल टैंकों की इस्लाम वॉर साहब हुई थी की, ना, जो बड़ा कहते हैं सबसे बड़ी वॉर टैंकों की, उसमें से 4 जनरलों में से एक जनरल जो है वो एमडी था। फिर जो कश्मीर की, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो हक खुद इरादी का जो करारदाद पास हुई थी, वो भी एमडी थे जिन्होंने पास कराई थी। लेकिन मुझे बताया ना क्या मकसद है इनको बताने का आपका, कि नहीं मकसद क्या ये- मकसद है आपका? नुमाया किरदार बताना जमात अहमदिया का। तो और नहीं कितने पाकिस्तान में और जनरल, कितने पाकिस्तान में और जनरल हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल थोड़ा किया, सा कुछ कितने ऐड कर पाकिस्तान में और सकता हूँ जनरल हैं इस जिन्होंने सिलसिले सब कुछ किया? मैं ये ये देखो- आर्मी के बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ। अभी नहीं आप करें, अभी बताएं, अभी जो हमारे जी, अभी जनरल है। वसीम भाई एक टाइम था जब ब्रिटिश इंडिया में हमारी आज़ादी से पहले जब फौज के अंदर बड़ा अफसर सिलेक्ट होना होता था ना, लेफ्टिनेंट से ऊपर जाने के लिए, तो वो कहते थे तुम्हें 3 महीने कादियान जाके रहना है, क्योंकि उन्होंने जहाद को मनसूख किया था। ब्रिटिश इंडिया यही चाहता था कि इसी तरह के हमारे आर्मी के ऑफिसर्स आएं, वो सिपाहियों की ऐसी तरबियत करें कि जहाद के खिलाफ। भाई म्यूट रखना तो था, म्यूट एक रखना था, कोई ऑफिसर बात नहीं है। एक ऑफिसर गया था, उससे पूछा कि तुम कादियान रहकर आए हो? उसने कहा जी। तो उसने कहा तुम अब अहमदी हो चुके हो? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम दोबारा जाओ और तब तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, जब तक तुम अहमदी नहीं होते। ठीक है, सही हो सनी भाई साहब, सुशिकर प्लीज म्यूट रखना। सनी भाई आप ड्रेस कर दें प्लीज इस मसले को। गया। आप थोड़े हमसे ड्रेस ज्यादा करने की क्या करते जरूरत है, ठीक है, बस ठीक हो नहीं, गया। म्यूट रखे जरा सनी साहब, सनी साहब को करने दे जरा। मतलब ये दिलचस्प बात है, मतलब अफसाने भी होते हैं और नहीं स्टोरियां भी ये होती बड़ा हैं, इंटरेस्टिंग किस्म का सान है। दोबारा सुनाओ शान जरा, मैं लतीफे भी इसीलिए होते आया हैं, हूँ। तो ये लतीफे सुनने चाहिए, ये बात सही। ये लाजमी, ये बड़ा ही खूबसूरत लतीफा है, जरा दोबारा मतलब सुनाइए ये कि कि- क्या होता था ब्रिटिश के जमाने में। जरा मेरे मैं पसंदीदा अर्ज करता हूँ, बंदे जब आ गए हैं। पाकिस्तान आजाद हुआ, साडा बबास्टे जब का पाकिस्तान- लुटियां पाओ। ओ मिस्टर मैं नवाज जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, हमारे हाफ जर्नल्स अहमदी थे।
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو فوج ملی ہے وہ کس قسم کی تھی. تو پاکستان کا ماشاء اللہ 7 دفعہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے. آپ اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح 1974 میں سے پہلے یہ جو فسادات ہوئے تھے لاہور میں 20,000 سے زیادہ بندے مار دیے تھے جنرل اعظم نے. جی تو یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اگر ہمیں ورثے میں یہ فوجی اور جرنیلز ملے یہ سارے کے سارے اس وقت احمدی تھے. آپ اسے فخر سے بیان کر رہے ہیں, ہم اس پر روتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ برٹش انڈیا کا تھا کہ کسی بھی فوجی نے اس کا جہاد کا کیڑا ختم کرنے کے لیے کہتے تھے 3 مہینے قادیان گزار کے آؤ اور احمدی ہو جاؤ گے تب تمہیں پروموشن دیں گے. برٹش گورنمنٹ میں جو فوج تھی اس کی تعداد کتنی تھی اس میں افسروں کی اندازاً؟ حسینی صاحب اس کے اوپر پوری ایک مسلم نے بک لکھی ہے. نہیں وہ بک تو لکھی رہے گی, 500 پیجز کی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مجھے موٹی بات بتائیں, مجھے اس سے کرنی, میں صرف آپ پاکستان میں فوج کی تعداد 500 ہے, 50 ہے یا 650 ہے, اور اس میں 6.5 لاکھ تقریباً 6 لاکھ. جی 6 لاکھ. تو اس وقت کا جو انڈیا تھا وہ پاکستان سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ بہت چھوٹا تھا. بڑا تھا. تو اس وقت ان کی جو فوج تھی, جو انڈیا میں فوج تھی, اس کی تعداد اس سے کم تھی یا زیادہ تھی جو اب پاکستان میں ہے؟ حسینی صاحب میں نے وہ بک اباؤٹ 500 اس بک کو دیکھیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی بک ہی بڑی پسند ہوتی ہے, انہوں نے خود جو بک لکھی ہوتی ہے ان سے جب بات کرنے لگے کہ آپ کا کیا, کہنے لگا میں نے تو ایک کتاب لکھی ہے اور دی کوئی کاپی لکھی ہوندی جڑی انہوں نے آپ خریدی ہوندی ہے, اور اس کتاب کے اوپر پھر وہ لیکچر, بھائی آپ نے کتاب لکھی تو کتاب کو وہیں رہنے دو, ہم نے کیا کرنا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں آپس میں نے نہ کوئی کتاب لکھی ہے نہ کوئی پڑھی ہے, میں تو موٹی باتیں کر رہا ہوں نہ وزڈم کے ساتھ بات دیکھنے کے لیے. میں نے کمپیئر کیا آپ سے بات سن کے کہ کیا انڈیا کی فوج, انڈیا ایک بڑا ملک تھا اس وقت, اس میں جو موجودہ بنگلہ دیش ہے وہ بھی انڈیا کا حصہ تھا, موجودہ پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا, برما بھی تھا, سیرلیون جو کیا کہلاتا ہے سری لنکا, برما سری لنکا, بھوٹان, یہ سارا کچھ انڈیا ہی تھا. تو اتنے بڑے انڈیا کی فوج اس پاکستان سے تو بڑی ہوگی نا, وہ سارے احمدی تھے. ایک منٹ ٹھہریں, اور ان میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے پروموشن, وہ کمیشن فوج اس میں ملٹری میں, آرمی میں اور اسی طرح اس میں کچھ اور ہوگا نامنکلیچر ایئر فورس میں یا نیوی میں, وہ پائلٹ آفیسر ہوتا ہے, پائلٹ افسر ہوگا جو بھی ہے. اور سب ان کے موٹی تعداد بتائیں 2 افسروں کی, لیفٹیننٹ کے برابر جو ہوتے ہیں اور کپتان کے برابر جو ہوتے ہیں, ان کی تعداد اندازاً انڈیا میں اس وقت 100 تھی, 200 تھی, 350 تھی یا 750 تھی, کتنی تھی؟ نہیں بھائی 2 ملین ہے, میں گوگل سے چیک کیا, گوگل سے چیک کیا 2 سے 2.5 ملین. 2 سے 2.5 ملین کیا چیز ہے یہ؟ فوج کی تعداد تھی 1939 میں ہو گئی تھی. اچھا, اس میں افسروں کی تعداد لیفٹیننٹ اور کپتان کی بتائیں کتنی ہے؟ یہ تو اب نہیں پتا, یہ شان صاحب کو پتا ہوگا. کچھ ایک اندازہ, مطلب اگر اتنی فوج میں اس سے آدھے تھے, ان سے پوچھے 10,000 تو ہونے چاہیے. بھائی آپ خود ہی کیلکولیشن یار کر دو, آپ کے پاس 10,000 ہونے چاہیے. اگر جتنے آپ بتا رہے ہیں نا فوجی, جو سپاہیوں کی تعداد لامحالہ زیادہ ہوگی, نان کمیشن کی زیادہ, انہوں نے کام کرنا, افسر ذرا تھوڑے ہوتے ہیں, نسبتاً کم لگا لیں, لیکن افسر بھی لیفٹیننٹ سے اوپر پھر جو جاتے ہیں وہ بھی ایک طائفہ ہوتا ہے بڑا, کیپٹن ہے, پھر وہ کیا کہلاتا ہے, میجر ہے, کرنل, فل کرنل, بریگیڈیئر, وہ بھی ایک اچھا خاصا اس میں گنجائش ہے افسروں کی. تو ان کو آدھے نہ سمجھ لیں, کوارٹر سمجھ لیں. اگر آدھے فوجی دوسرے ہوتے ہیں تو آدھے افسر سمجھ لیں, آدھے افسر نہ سمجھیں آپ اس کو کوارٹر سمجھ لیں, کوارٹر سے بھی آدھے سمجھ لیں. 500,000 5 لاکھ ہو گئے بھائی, 2 ملین تھے تو 5 لاکھ سمجھ لیں. 5 لاکھ کو اب 5 لاکھ کا آدھا کرتے ہیں, 2.5 لاکھ تو ضرور افسر ہوں گے نا. ہاں جی, اور 2.5 لاکھ افسر اگر قادیان میں چلے جائیں تو قادیان کو اٹھا کے بٹالے میں رکھنا پڑے گا.
हुजैरी साहब, मुझे उस किताब से 2 वाकयात याद रह गए थे। जी जरूर। एक आपकी खिदमत में मैंने पेश किया कि वो ऑफिसर का ये नहीं था कि वो सारे एक साथ ट्रेनिंग कोर्स कोई मिर्जा साहब वहाँ करवा रहे थे, ये जाके वो ट्रेनिंग करते थे, ऐसा नहीं था। वहाँ जाके जो जहाद का कीड़ा था वो मारना होता था। वो मिर्जा भाई साहब वो उनको तो समझ तबलीग आ करते गई थे। शान भाई, उसमें जो दस्ता जाता था वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए कादियान में, उनको डीडीटी पिलाते थे ताकि कीड़ा मर जाए जात का। वो दस्ता 5-5 आदमियों का जाता था, 10-10 का जाता था, 500 का जाता था, 1000 का जाता था। और किस जगह वहाँ क्या बिल्डिंग, कादियान में तो इतनी बिल्डिंग ही नहीं थी, मैंने देखा कादियान जी, कादियान में तो जो आम ये आदमियों के रहने की भी जगह नहीं वहाँ। ये वहाँ अब क्या करना था ऑफिसर का अफसरों ने? अपना जाती वाकया उसमें हैं? बयान किया गया कि मैंने कमीशन लेना था। चलो उन्होंने बहुत ठीक, पूछा था, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने बताया है, उस किताब पे मैं ईमान लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मुझे नहीं उसमें से कुछ नहीं। वो देखिए किताब मेरा मकसद कोई नाराज तो नहीं करना, मैं मेरा आपको एक मेरा वाकया मकसद सुना है रहा हूँ। कोई अकल की बात करना है। शान भाई आप तो एक बहुत समझदार किस्म के इंसान हैं। हमें किसी फिरके में, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं, मैंने अंदाजा लगाया है। अच्छा, दूसरा वाकया आपके सामने मैंने पूछवाया जब उनसे। पाकिस्तान आजाद हुआ है, पाकिस्तान उसके वाकई बाद आजाद हुआ है? 1947 में जब नहीं, आजाद हुआ है, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है? हाँ जी, पाकिस्तान 1947 में बना था ना? बना था या आजाद हुआ था? बना था कि आजाद? जी जी, आजादी हम मनाते हैं ना, यौम आजादी नहीं मनाते 14 अगस्त। ठीक हो गया जी, ठीक हो। गुजारिश ये है कि उस वक्त हमारे आधे जर्नल अबाउट 47-48 ये सारे अहमदी थे। ये जो अहमदी दूसरा थे वो वाकया मुझे ट्रेनिंग याद की रह वजह से गया। अहमदी हुए थे या अपने खानदानों में ही अहमदी थे खुद ही पहले से? ये डिटेल हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है उसके बाद जो 7 मार्शल लगे हैं वो इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। और वो सारे मार्शल अहमदियों ने लगाए कितने हैं। मार्शल लगे हैं? मेरे ख्याल 7 के करीब मार्शल मेरे ख्याल में पहला मार्शल कौन सा था? अयूब खान का 1958। नहीं, मुझे एग्जैक्ट इतनी तफसील नहीं पता, मुझे ये पता है कि तो फिर किताब तूने क्या पढ़ी है शान भाई? 2 अहम वाकयात थे वो मैंने ये किताब किसने लिखी है? ये एक मुस्लिम ने लिखी है। मुस्लिम कौन सा, नाम क्या है? अगर इजाजत देंगे तो मैं अगली दफा वो किताब लेकर आऊंगा। नहीं वो ठीक है, अगली दफा वो किताब आप देखें, वो एक मुस्लिम की है तो ठीक सही यानी हो। भाई एक ना सवाल है, किसी ने पूछा एएम और पीएम का मतलब क्या है, ठीक है? तो जवाब पीएम का मतलब है शहबाज शरीफ और एएम का मतलब है आसम मुनीर। नहीं, पीएम का मतलब पास्ट मेरिडियन होता है और आफ्टर मेरिडियन, वो जो टाइम कहते हैं ना एएम एंड पीएम। पीएम को उसने लिया ना प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि पीएम का मतलब है शहबाज शरीफ। तो उसने कहा अच्छा एएम का बताओ, तो कहता है इसका मतलब है आसम मुनीर। वैसे एएम होता है आफ्टर मिडनाइट और पीएम होता है पोस्ट मिड डे। पोस्ट मिड डे, ठीक है। वो टाइम मेरिडियन से शुरू होता है ना, जो लंदन में है, जिसे ग्रीनिच मेरिडियन कहते हैं। तो मैं उसके अच्छा, वैसे हुसैनी साहब ये जो शान ने बात की ना, ये अकेला नहीं है, इनको इसी किस्म की कहानियां सिखाई जाती हैं। जहाद का कीड़ा मारना। नहीं, मेरी गुजारिश सबसे बड़ी बात ये, शान साहब बात करने दे, आपकी सुनिए ना आराम से। एक मिनट, हैंग ऑन, वी विल गिव यू एनफ चांस, नॉट टू वरी। बात ये इनसे पूछी कि इनके जहाद का कीड़ा मारना था। कौन से जहाद का कीड़ा मारना था? जब से मिर्जा साहब ने जहाद को बंद किया, जरा बताओ कि तुमने कितने गज जमीन जो है जीती है। फिर मिर्जा साहब ने जो कहा तुमने तो उनका हुक्म माना है। कितने मुल्क तुमने आजाद किए हैं, और अभी भी तुम जहाद क्यों नहीं करते? तुम्हें किसने, क्या वाकई फिर जहाद का कीड़ा तुम में मर गया ना? मिर्जा साहब कामयाब हो गए। ओ इमरान खान को नहीं तुम बाहर निकाल सकते जहाद करके। सज्जे पासे तुम्हारे कश्मीर है, वो नहीं आजाद होया, फलस्तीन नहीं आजाद होया। लेकिन तुम्हें किसने मना किया? जब पाकिस्तान आजाद हो गया उस वक्त तो तुम्हारा जहाज का कीड़ा बिल्कुल ही मर गया, तुम्हारी फौज का बिल्कुल ही मरया पे है। वो एटम बम बना के अपना उसके ऊपर वर्क चांदी दे ला के बैठे ही नहीं ना कश्मीर नो आजाद कर देने। मैं कमेंट कर लूं? नहीं तो आपको किसी ने कहा कि नहीं आप करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। देखिए जमील साहब, जो गोरे अंग्रेज थे वो तो चले गए, पीछे काले अंग्रेज छोड़ गए। उन्होंने मार्शल लॉ लगा के मुल्क को बिल्कुल मार्शल लॉ किस किस ने लगाया?
अगर आप उसकी जो तहकीक करें, जो पीछे जर्नल्स होते हैं सारे, नहीं आपने वही कर रहे तहकीक होते की, हैं ना, आप वही बताएं, भाईवाली के अंदर मुझे उन्होंने तहकीक नहीं चौधराहट करनी बनाई आती हुई है। आपकी नहीं ठहरो आवाम से आपकी कोई तहकीक इंटरेस्ट क्या नहीं है कहती सर, है? आपकी क्या उन्हें तहकीक आवाम कहती से है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं वो सारे अहमदी हैं। देखिए आप गौर फरमाइए, मैं आपको फरमा रहा हूँ जी, जब मिर्जा महमूद साहब जलसा सालाना में तकरीर कर रहे थे, आर्मी के चीफ एयर मार्शल साहब खुद जहाज उड़ाते हुए आसमान की तरफ सीधा ले गए थे। मिर्जा महमूद साहब ने झोली फैलाई हुई एक मिनट ठहरे जरा। ये मिर्जा महमूद के जमाने में हुआ। मिर्जा महमूद के जमाने में एयर मार्शल जफर की बात सुनो जरा। एयर मार्शल था, एयर चीफ नहीं, एयर चीफ था वो जफर था, वो मिर्जा महमूद के जमाने में था। जरा सैनी साहब जरा दसना। मैं वही पे कहना भी ये ते जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करबला च आए ते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाके हज़रत नूह नूं मिले, उन्हें आख्या तुहाडे बच्चे दा की हाल है, ते उस वक्त फिर भुट्टो जिहड़ा है वो भी उस वक्त गया उमरा करन। इस तरह जदों कहानियां शुरू की, कोई पता ना ਉਹਦੇ ਸਾਬਕੇ और ला के सारे खत्म हो जान ते फिर हनेर हो जाता है। एक मौली साहब कहते हैं हजरे असवद दी कादियानी चुरा के ले गए सन। इस तरह की बातें नहीं, कोई थोड़ी बहुत अकल वाली करनी चाहिए। हुसैन साहब ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਮ ਸਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ 199 ਜਾਂ 177 ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ 199 ਅਫਸਰ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ हैं कमीशन दिया जाता था वही अफसर बनते थे। हाँ जी क्या अहमदी कमीशन दिया जाता था वही अफसर बड़े अफसर बनते थे ताकि ये जहाज ना करें ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। इसीलिए तो मिर्जा साहब को लॉन्च किया नहीं ठहर तो जा लॉन्च जहाज ना हो उनके खिलाफ। और नहीं समझ आ गई, वो जहाज भी मिर्जा साहब जो थे खुद काश्ता पौधे थे और इसलिए कमीशन किसको दिया जाता था? ये बातें तो आपने खुद पढ़ी हुई है ना? नहीं पढ़ी नहीं हुई, आप लोगों के मुंह से सुनी हुई है। अच्छा ये बताएं कि जो खुद फरमाया कि मैं खुद काश्ता पौधा, ओ यार राम ने लपाया का मुआज़मा कह रहे हैं उनको। देखिए ना आप जो वो खत लिख रहे हैं उनके साथ फरमा रहे हैं कि आप मलका मुआज़मा हैं, मक्का मदीना में अब सुकून नहीं है, लंदन में अब मुझे सुकून मिलता है। आप खुद देख सकते हैं क्या हो रहा है। हाँ लंदन में रहते थे मिर्जा साहब इसलिए उनको सुकून मिलता है। कितने साल रहे मिर्जा साहब लंदन में? शशि तरूर एक इंडियन राइटर है, उसने कहा कि दुनिया के अंदर वर्स्ट तरीन दौर था जब ब्रिटिश आए हैं इंडिया में। इन्होंने यहाँ से दौलत लूटी है, ये सोने की चिड़िया थी, सारा पैसा लूट के चूस के चले गए। और उसके बाद जब से आजाद क्या हुए फरमा रहे हैं? आजकल सबसे फरमा रहे हैं कि वो मलका वो मुआज़मा, मैं आपका खुद काश्ता पौधा हूँ। और देखिए ये सारी बातें वारा खाती हैं। नहीं बिल्कुल वारा नहीं खाती। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मलका मुआज़मा और सुने हुसैनी साहब बात ये कह रहे हैं शान साहब कि वो नहीं, ये बात उन्होंने कभी नहीं कही कि मलका मुआज़मा मैं खुद काश्ता पौधा हूँ, ये कभी नहीं कही।